اور میں نے پہلے کہا کہ یہ بہت اچھی کہانی نہیں ہے، صرف ایک کوالٹی ہے اس کی کہ جو مختصر نوکیلے میناروں، گول مول محرابوں اور آرائشی نقش و نگار والے چکنی مٹی سے بنے چولہوں میں اپلوں کی آگ دہک دہک کر بھسم ہو رہی تھی۔ چوکے کے بوہے سے لگا ڈبو تھوتنی اٹھا اٹھا کر ہوا میں بھونکنے لگا اور تنومند گردن جھٹک جھٹک کر فضا میں لپکنے لگا جیسے خلا میں بلیاں بھری۔ راز کی پراسراریت اور بھید کے پا لینے والی سرشاری میں شرابور بوبو نے بشیرہ کے چولہے میں ٹھوکا دیا۔ دونوں کی ہلتی گردنوں نے راز کی ترسیل پر مہر اثبات ثبت کر دی۔ اب تو روز ہی آتی ہے اور اسی وقت پر۔ خمیری روٹی کی طرح ابری ہوئی جھریوں کے جال میں چھپی خون اتری سفیدی میں لپٹی پتلیوں میں لو بھر آئی، جیسے سیاہ اندھی کالک میں لپٹے دیے کی لاٹ تیز ہو جائے۔ نذیر احمد، اب تو تجھے اعتبار آیا نا؟ اب تو روز ہی اور اسی وقت۔ لالٹین کی سیاہ چلمنی سے چٹکتی ہوئی راکھ کے ذرے نتنوں میں گھس رہے تھے۔ دھواں چھوڑتی ہوئی بتی دو لاٹوں میں بٹ کر کتاب کے حرفوں پر گول مول ترمرے سے بنا رہی تھی۔ مقصد کی جستجو اور استعداد کی کوتاہی کے پیچیدہ جالے میں لپٹی ناگواری لڑکے کے چہرے کو کرخت بنا گئی۔ اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا تو اڑتی ہوئی گرم راکھ حلق میں چڑھ گئی۔ پتہ نہیں کب ختم ہوگی یہ جہالت۔ لڑکے نے کتاب کے کئی صفحات یک بار کی الٹ دیے، جیسے اڑیل سمے کو ایڑھ لگا دی۔ تیری کتاب میں کیا لکھا ہے کہ روح نہیں ہوتی؟ بے دانت کے پوپلے منہ سے نکلتے ہوئے حرف اندر کے خوف کی طرح لرز رہے تھے۔ چولہے میں بھرے اپلے اپنے سالم شکل میں بھسم ہو چکے تھے، جن کی اندرونی تہہ سے کہیں کہیں کسی کسی سوراخ سے ذرا ذرا دھواں اٹھ رہا تھا۔ بہت اچھا۔ روح تو ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں لکھا کہ وہ کتوں کو تو نظر آ سکتی ہے مگر انسانوں کو نہیں۔ لڑکا تندنا کر اٹھا جیسے وہ ان احمق بچوں کی کلاس کا فاضل استاد ہو، اور موڑا لڑکنیاں کھاتا ہوا چوکے سے باہر نکل گیا۔ لیکن مجھے تو سب نظر آتا ہے نا، جب اس نے میرے سامنے، اپنی ماں کے سامنے، ان بھوری آنکھوں کے سامنے کھو میں چھلانگ ماری۔ تیرے تینوں مامے کرپانوں میں سل گئے، باپ تیرا سنگینوں میں پرویا گیا، منہ اور دیدوں سے لہو کی فوار چھٹ گئی۔ پیو نے کہا نیک بیگم کھو میں نہا جا، تو وہ اندھے کھو میں نہانے کو کود گئی اور پھر نہا کر باہر نہ نکلی۔ شہادت کی انگلی فضا میں سرعت سے گھوم رہی تھی۔ نیک بیگم دیے نی تو ہی ناون نو جا، ہائے مر جاویں دیے نی تو ہی ناون نو جا، اور تسیاں نہا کر آئیاں، ہائے مر جاویں سی دیے نی ماریو ڈونگڑی چھال، ہائے مر جاویں دیے نی وال تے تیرے گز گز لمے، ہائے مر جاویں دیے نی اڑے سروٹیاں دے نال، ہائے مر جاویں دیے نی اکھیاں تیریاں بلند مشالا، ہائے مر جاویں دیے نی بھریاں ریتو دے نال۔ شہادت کی انگلی جھریوں زدہ لجلجی توری کی مانند فضا میں دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں گردش کرتی رہی۔ سالم بھسم ہوئے اپلوں میں بنے چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں جلے بھنے گوبر کے کیڑوں کے بطن سے اٹھتا کڑوا کسیلا دھواں رکت انگیز بین میں سلگتا رہا اور ارد گرد بیٹھی میل خوری بکلوں میں بھر گیا۔ پھسر پھسر ناک کی لال مرچ سی کھنک سے بہتا قطرہ قطرہ پانی گرم راکھ میں سو سو ٹپکتا رہا۔ بشیرہ نے مٹھا بھر کر چھڑیوں کا دہکتے ہوئے اوپروں پر پھینکا اور اڑتی ہوئی راکھ میں گال پھلا پھلا کر پھونکنے لگی۔ سیاہ دھوئیں کا بادل لکڑیوں کی تہہ سے اٹھا اور آگ کے لامبوں کو لپیٹتا ہوا بنیروں پر چڑھ گیا۔ نیک بیگم دیے نی ہائے مر جاویں دیے نی
यख बस्ता सन्नाटे में भूं भूं हारन चीखने लगा। नज़ीर अहमद ने इतना तराशीदार लकड़ी के तख्तों से बना बड़ा सा गेट खोल दिया। ट्रैक्टर ट्राली में सवार उसके तीनों बड़े भाई अंदर आ गए। कीनों, गाजरें, मूलियाँ, गन्ने, झोलियाँ भर भर बच्चों ने लूट ली। ट्राली में कदर मच गया। तीनों 6-6 फुट के कड़ियल जवान अपने अपने कोठों में चले गए। तीनों की बीवियों ने गेहूं के रंगे नाड़ से बनी चंगेरों में सरसों के साग पर मक्खन के पेड़े रखे और पलवों से ढांप कर खाना अंदर। बशीरा ने जलते बलते भुट्टे की राख को हाथ मार मार कर झाड़ा और अंगूठे की पोर से दाने भोर के हथेली में फैला दिए। ले बोबो तू भी खा। बोबो ने 1.5 दांत के नीचे 1-2 दाने दबाए। गहरी नागवारी झुंडों के जाल को समेट गई। हटाओ परे निरा भोग। हाय ने बशीरा बीबी, छली तो होती थी देसों में। ये छली, इसने लंबा लंबा हाथ दराज किया। करनैल सिंह की पैली में कोई छलियाँ, ये मोटे मोटे दाने, चिट्टी ते गंजी छलियाँ, चुन चुन के तोड़नी, चुन्नी में भर लेनी। घर आके बेबे ने कहना, हंसी फेफड़ों में अंदर ही अंदर 4 चुफेरे घूमने लगी, जैसे चारों ओर से हवा हम फड़फड़ा रही हो। पर ये तो अपनी पैली की हैं, फीकी हैं तो क्या हुआ? नज़ीर अहमद ने नजरें हरफों में यूं गाड़ दी जैसे उनकी खाल के अंदर से कोई तलाश कर रहा हो। वो भी अपनी पैली जैसी ही थी। कभी न रोका, कभी न टोका उस भागवान ने। गोरा रंग, काले केस, केसरी कुर्ता, अरे कोई उसे सजना, नीरा सपेरा, खूह से टिंडे भर भर पानी की निकालनी, ठंडा ते मीठा पानी, नीरा शरबत, सोना जवान था। कहना बरकत बीबी, तेरे घड़े में डलकर पानी शरबत क्यों हो जाता है? उस खूह का पानी तो वैसे ही शरबत था, पर करनैल सिंह चारों ओर से चीरती हुई पागल हवा भंबीरी को घुमाने लगी। पर करनैल सिंह सच्ची बड़ा ही मजाकिया था, इसीलिए तो मार डाला तेरे खेश कबीले को। रेजा रेजा लफ्जों में गड़ी नजरें जैसे उनकी खाल के अंदर से कुछ न ढूंढ पा रही। ना करनैल सिंह ने नहीं मारा, वो तो बड़ा ही बीबा बंदा, बड़ा ही। तो फिर जरनैल सिंह ने मारा होगा, वो तो उससे भी बीबा। तो फिर कप्तान सिंह ने मारा होगा, लेफ्टिनेंट सिंह ने मारा होगा। मारा तो किसी सिंह नहीं है ना। नज़ीर अहमद ने थप से करके किताब बंद कर दी। चेहरे पर बिछे आड़े तिरछे जाल में गहरी संजीदगी तैरने लगी, जैसे किसी बड़े फलसफे का इंकशाफ करने से पहले किसी दाना फलसफी पर इनकबास की कैफियत तारी हो। हाँ नज़ीर अहमद, पर उस सिंह का कोई नाम नहीं। वो तो कोई 4 दिन पहले करनैल सिंह शहर अंबर सर गया। तेरे दादे से आकर कहा, चौधरी कोई बात है कि देशों की वंड पड़ जानी है और मुस्लिमों को पाकिस्तान जाना पड़ना है। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे घर बार ढोर डंगर सब अमानत। थोड़े दिनों की बात है, हर कोई घरों घरी वापस आ जाएगा। हाय लौडे वेले भरे बुकुन्ने घर को जंदा मारा, भूरी के मत्थे पर हाथ फेरा, राख में दबे भुट्टे तड़कने लगी। उपलों का गला पकड़ने वाला कड़वा धुआं हलक में ठहर गया। दाना फलसफी के चेहरे पर नताइज की कम फहमी उलझन बन गई। बोबो तो फिर क्या हुआ? रब सोने की नेमतें देख और शुक्र कर। 2 कनाल के हाथे में एक जानब ट्रैक्टर ट्राली समेत खड़ा था, साथ थ्रेशर लगा था, जो बारे वाले पक्के मकान में सामान उमड़ा पड़ रहा था। दूध देती और गाभन भैंसों से बाड़ा भरा था। इससे ज्यादा छोड़ कर आई थी क्या? जोरे बाजू का घमंड लड़कों के चेहरों पर बरस पड़ा था। हाँ तो इससे बहुत कम, पर इसका स्वाद दूसरा था। वो स्वाद तो बस देशों में ही रह। इसी रहमदा देशों में कोई मूली होनी, ये लंबी मूली ते मिठी खंड जैसे मिठास हलक में घुलती हुई सीने में उतर गई।
नज़ीर अहमद ने झुंझला कर फिर किताब खोली। सफ़ात फड़फड़ाते रह गए। नज़ीर अहमद पराया ना क्या पराया, तेरे 3 मामे शी जवान टोटे टोटे वही वो बिखर गए। तेरे दादे का लहू वो मिट्टी पी गई, तेरे 2 ताए वही भूल गए। पता वापिस ही चले गए हों अपने घर को। इतने न्याने थोड़ी थे, एक 8 साल का, एक 10 साल का, सारी सुर समझती उन्हें, घर का रास्ता आता था। तेरी किताब में करनैल सिंह का पता नहीं लिखा क्या? अरे बोबो, न जाने किस करपान में लिपट गए होंगे बेचारे, करनैल सिंह के पास थोड़ी गए होंगे वापस। हाँ, तेरी बात भी सच हो सकती है। हाय नेक बेगम, बाप ने खूह में नहागी, फिर बाहर ना निकली। नेक बेगम दिए में तूने नामण जा। बशीरा अली ओ बशीरा हुआ खोल, कड़ाकेदार आवाज बैंड के रिदम में रोड़े परोगी। लो आगे डाय, काली डाय उठाकर फेंक दी कलेजे की बोटी। अरे 6 महीने की बशीरा थी, सड़े हुए मुर्दों के ढेर पर जिन्हें कुत्ते और गिद्ध नोच रहे थे, नाक में पल्लू अड़स कर फेंक दी। अड़ियो, अगर मैं पीछे ना होती, अगर तू पीछे ना होती तो ये तेरी बहू कैसे बनती। कड़ाकेदार नखरे में सारी दीगर आवाजें लिपट गई। मैंने उसी वक्त कह दिया था, जिसने इसे जिंदगी दी वही इसकी मालिक, चाहे तो संभाले चाहे तो मारे। भज्जो टेढ़ी मेरी लाठी टेकती, मुंह नाक से भाप छोड़ती, सू सू करती, चूल्हे के करीब बैठ गई। झुड़ियों के चेहरे की झुड़ियों में बहती हुई अनगिनत कहानियाँ आज की तपश में सुलगने लगी। बार बार भूखा हुआ लोगड़, सख्त और बेहरारत। नीले डोरों वाले केसों की बुकले मारे हुक्कों की नए मुंह में दबाए खमीदा कमर वाले कई बूढ़े अंदर आए। फकीर ममदा, इसे बता कि हमें करनैल सिंह ने नहीं मारा, जरनैल सिंह ने भी नहीं मारा। हमें तो फकीर मोहम्मद के बताने से बेशतर वो खुद ही बताने लगी। करनैल सिंह तो बड़ा ही बीबा, मेरी शादी पर लाल रंग का नैन सुख का जोड़ा दिया। बोला बरकत बीबी, इसे सूट न समझना, इसके ताने बाने ताने में कोई अंदर ही अंदर चुटकियाँ भरता चला गया। 16 बरस की कमारी के मन में बुद मच गई। वो था ही बड़ा मजाकिया। लो और सुनो, था ही बड़ा मजाकिया। बाबा दीनों ने गहरी कड़वी खांसी खांस कर कफ दूर परे फिजा में उछाला। डब्बू ने आवाज से आवाज मिलाई, खुरी ना दी मत, हंस लैंदियां ला ते रो दे दियां दस। हम तो आज तक कुछ और ही समझते रहे। करनैल सिंह बड़ा पीपा। तो बुड्ढे की और सुनो ना, तुम क्या समझते रहे? मैं ना जानती थी तेरे लक्षण। सुरिंदर कौर के खुरे पे खुरा तरता, बावले कुत्ते की तरह हर वेले पीछे लगा रहता। दुपट्टा बदल से थी मेरी, सब बताती थी मुझे। चादर का पल्लू नाक पर जमा कर उसने मुंह की ओट ले ली, जैसे जमानी फासले लिपट गए हो ओढ़नी के दामन में। सुरिंदर कौर जैसी जनानी थी कोई पूरे पंजाब में? गुत काली नागन, शलवार के तीरे को चूमती हुई, भलाई का बूटा कर ये हिप, बुहे से औखी लंगे, छाबे से दूरी की हुई रोटी निकाल रगले परांदे पर धर लेती। मैं बढ़कर रोटी उचक लेता, मखने का पेड़ा पिघलता रहता। धीरे धीरे झाग तैरने लगती, चिट्टी ते मलूक मुड़ देखती, पैर वट से फिसल जाते। साथ आ रही थी मेरे पाकिस्तान। बोली, देशों में क्या रखा है, जो तेरा देश वो मेरा देश, पर अब्बा ही न माना। कहानी की दिलचस्पी तकरार की यकसा निकल गई। चूसे हुए गन्ने के फोक की तरह हलक में बुरादा सा उड़ने लगा। नौजवानों ने हलक में उड़ते बुरादे को थू गल दिया। आह वाह करा, हर वाकफ के लम्हे से वो खूब वाकिफ थे। लो संतरा खाओ, अपने बाग का मेवा है। नसीर अहमद ने बोरा खींचकर बीचों बीच उलट दिया। बहन बरकते संगतरे तोड़ते थे देशों में, मोटे ते रसीले, निराश है उगला हुआ फोक फिजा में मारे को।
ते मूलियां ते गाजरां, मिट्ठी ते खंड ते टपटी आम। करनैल सिंह की पैली में कतार अंदर कतार छोटे छोटे कद के आमों के बूटे, जैसे हरी बुकले मारे पिटियारे झाजरे उठाए, कतार अंदर कतार चली जा रही है। घुटी घुटी हंसी पल्लू में अबाब से पटने लगी, जैसे कुएं की तह में डोल डाल दिया गया हो। उसने भज्जों के कान के करीब मुँह लाकर नस्वार की चुटकी कल्ले में दबाई, चुन चुन के टपके आम केसरी चुन्नी में भर ली, चुन चुन के सितारे आंखों में उतर आए, चुन चुन के यादें सीने में भर आई। 80 बरस की गुड़िया घोर तारीख खंडर और हरारत चमकीली धूप, सारे नशेब में उतर गए, सारे रेगजार सुनहरे हो गए। सारे आम बस करनैल सिंह की पैली में ही थे, बाहर भी होते थे, वो भी बड़े मीठे थे। बाबा दीनू धूप की हिद्दत से घबरा गया, बाहर भी उठते थे, पर तेरी पैली के तो खट्टे ही होते थे ना। पैल डालता था तेरा पर, सारा साल सर इकट्ठी करता रहता, खट्टे खजूर। करनैल सिंह की पैली के आम तो मीठे शहद, कुएं के पैंदे में डोल ऊंधा हो गया, बुलबुले सूरज से पटने लगे। कहना कदी सानों में छुपाओ, मैं खींच के आम मार, केसों में उलझ जाता, और चुप हो, मैं आमों के झुंड की ठंडी ते सरमई छाँव में छुप जाती। नज़ीर अहमद, तू 2 जमातें पढ़ा हुआ है? नज़ीर अहमद तिबरा कर उठा, जैसे उसकी सनदों उसकी आंखों के सामने आग लगा देती। वो कितनी बार बताया, मैंने 12वीं जमात का इम्तहान दिया। अच्छा 12 जमात। करनैल सिंह 4 जमातें पास था, जैसे जवाबी पत्थर ज्यादा बसने। तो फिर अनपढ़ ही हुआ ना। पर नीम और श्री के झुंड में भरे कुत्तों के वॉल को पत्थर मार मार कर भगाने लगा। ना नज़ीर अहमद ऐसा ना कहे, वो बड़ा पढ़ा लिखा था ना, तभी सारों को करपानों में सी दिया और नेक बेगम को खूह में धक्का दिया। उसने तो धक्का नहीं दिया, ना उसने धक्का नहीं दिया। वो तो बाप ने कहा नेक बेगम खूह में नहा जा, वो नहा गई, फिर नहा के बाहर न निकली। पीपल नीम और श्री के गहरे झुंड में दुबका डब्बू थुथनी उठाकर फिजा में फूंकने और पिछले पंजे जमीन में गाड़ कर जस्त भरने लगा, जैसे हर सू दुनिया भरी। नेक बेगम दिए नी तुम्हें नामन हो जा, हाय मर जाने दिए नी तुम्हें नामन हो जा। जिस रोज गाँव में बिजली आई, उस रोज नज़ीर अहमद का पहला पर्चा था और अगले रोज मुतालिया पाकिस्तान का पेपर था। वो रात के पिछले पहर तक बरकी रोशनी में किताब के रेजा रेजा लफ्ज़ों के अंदर झांकता रहा। कोठे में बनी परछत्ती नमा पुख्ता शेड पर धरे कांच और स्टील के बर्तनों पर रोशनी की लाटें बिखरती रही और शेड के नीचे बिछी गोबों की चारपाई पर ब्रोकेट के लिहाफ पर फैलती रही। केसरी ब्रोकेट के लिहाफ पे से उसका सिर्फ मुंह झांक रहा था, सर्द सर्द रोशनी में छुपा जैसे केसर में बोल गया। खून उतरी सफ़ेदी में मकैयत, मैली पुतलियाँ पीले रंग में रंग गई। बोबो ने नस्वार की चुटकी गले में दबाई, दाढ़ के अंदर पिचका हुआ गाल फूल गया, सुराख सदा गुब्बारे में हवा भरती और निकलती रही। नज़ीर अहमद, गाँव में बिजली आ गई। हाँ बोबो, आ ही गई आखिर। इधर उधर बिछी चारपाइयों में सोए अफराद के खराटे भूपू की तरह मुख्तलिफ साज बिछा रहे थे। डब्बू चुप हो गया। नज़ीर अहमद, इतनी लौ हो गई है, अब कैसे, अब कभी ना बोलेगा। हाँ बोले भी क्यों, तेरी किताब के हर्फ ज़्यादा साफ नजर आने लगे हैं। बोलना नज़ीर अहमद। हाँ ये तो है। करनैल सिंह का पता नहीं नजर आया। वो लड़के के सेहत पर बेजारी नाकहानी पत्थरों की तरह बरस गई, जैसे जुमला उसकी चिड़ बन चुका। बाहर फैला गहरा सन्नाटा बरकी कुमकुमों ने उजाड़ दिया था। ना जाने डब्बू कहाँ सो मर गया था। पीपल नीम और शीरी के
क्या बस्ता अंधेरे में कहीं सिमट गया था शायद। वज़ीर अहमदा, तुझसे एक बात कहना थी। क्या है वो? नागहानी पत्थरों की बारिश शदीद हो गई। वज़ीर अहमदा, इस किताब में लिख दे वज़ीर अहमदा। क्या लिखूं? लिख, हमें करनैल सिंह ने नहीं मारा। मारा तो किसी सिंह नहीं है ना। नागहानी पत्थरों की बुछार सी बरसी, हाँ पर उसका कोई नाम न था। चारों वीर कट गए, सर का साईं टोटे हो गया। लाल वहीं रुल गए, नेक बेगम वो बूढ़। वज़ीर अहमद तड़प कर उठा। प्यो ने कहा, आँखों में नहा जा। नहागी, टेप में लगी कैसे। हर अमल, हर रद्दे अमल से बेनियाज चलती चली गई। नहा गई, नहा के बाहर न निकली। नेक बेगम दिए नी तुम ही नाड़ू जा। हाय मर जावे दिए नी तुम ही नाड़ू जा। हाय मर जावे दिए नी मारी ओ डूंगरी छाल। हाय मर जावे, हाय मर जावे। पूरा कोठा बैनों और चीखों से थर्रा उठा, जैसे जगबार की गदर मच गया।